India Today has also gotten access to Riya Chakravarti's income tax returns. These are part of the investigation. These returns for the financial year 2017-18 and 2018-19 show a sudden increase in income of Riya from what the agencies are saying are unknown sources. In both of those years, Riya had declared her total gross earnings at about 18 lakh rupees. However, the total fixed assets of Riya increased from 96,000 rupees in 2018 to about 9 lakh rupees in 2019, indicating a tenfold rise in fixed assets. The Enforcement Directorate is also probing how the actor was able to buy shareholder funds worth 34 lakh rupees in 2017-2018, while her income as per the income tax returns document was around 18 lakh rupees. The Enforcement Directorate is investigating Riya's source of income as she made investments in multiple platforms in comparison to her gross total income declared. Her fixed deposits in HDFC Bank and ICICI Bank are also officially under the scanner. Her tax returns, though, show no big transactions from 2017-2019. And I want to say once again, the principle of innocent until proven guilty always holds in this case. And none of the allegations against Riya Chakravarti have been substantiated in this investigation thus far. And amidst this ugly political war between Bihar and Maharashtra, because that's what it's become, over this death probe into Sushant Singh Rajput's death, now Shiv Sena MP Sanjay Raut has made an unsavory dig at the late actor. Raut, in an explosive claim in his mouthpiece Samna, has said that Sushant Singh Rajput was not on good terms with his father, and what was going on with his family in Patna needs to be investigated as well. Sanjay Raut says that all was not well between Sushant and his family. Raut's editorial, quote-unquote editorial in his newspaper did not go down well with Sushant's family, obviously, with Sushant's cousin Neeraj, who is also a BJP MLA, threatening to file a defamation case against Sanjay Raut. The JDU too has slammed the Sena MP for a personal attack on the late actor. ये मेरी जानकारी और ये सच। उनके फैमिली में क्या चल रहा था वो भी एक जांच का, वो बिहार में खास। कितने बार सुशांत अपने पिता को मिलने गया था पटना में। आप देखिए उतना आप प्यार, जो आपको शौक, सदमा, ये सब शब्द मैंने देखे हैं उनके। मुझे संवेदना है पिता के बारे में, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी है जो सच अब सामने आएगा। इससे डर से कोई इस प्रकार से जांच को गुमराह करने की कोशिश क्या कोई कर रहा है? अगर है तो मुंबई पुलिस ये षड्यंत्र को पर्दाफाश कर देंगे। लेकिन जिस तरह का वो एक फुहर वाला बयान दे रहे हैं, एक संवेदनशील मैटर में एक फुहरपनी कर रहे हैं, एक राज्यसभा सांसद हैं, एक अखबार की एडिटर है, और इस तरह का हल्का बयान उनको कम से कम नहीं देना चाहिए। उनको तो शर्म आना चाहिए और उनको माफी मांगनी चाहिए। इतना माने आघात पहुंचाने वाला बयान, जहां करोड़ों फैंस उनको सराह रहे हैं, उनके पिताजी को, एक बुजुर्ग आदमी पर इस तरह का माने शर्मनाक आरोप लगाना, ये काफी निंदनीय है। और जरूरत पड़े तो मैं मानहानि का मुकदमा करूंगा संजय राउत जी पर। ये सब बात सब निराधार है। इन सब बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे केस को प्रभावित करने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं जो बेबुनियाद है। सुशांत के पिता और पुत्र में तो काफी घनिष्ठ संबंध था। अब इतना अधिक संबंध था, प्रेम था कि इससे क्या कहा जा सकता है। ये सब आरोप गलत है और केस को प्रभावित करने के लिए वहां की सरकार सारी बात को छिपाने के लिए ये सब लांछना लगा रही है। आज सारी बात, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो लोग जांच से घबरा रहे हैं। इसमें किसी बड़े माफिया को बचाने के लिए, बड़े अपराधी को बचाने के लिए ये लोग सारा साजिश रच रहे हैं। तो सत्य तो छिप नहीं सकेगा, सत्य तो एक न एक दिन सामने आएगा ही, और दूध का दूध, पानी का पानी, वो सब क्लियर हो जाएगा। जांच तो सही ढंग से होने दी, ये लोग होने दें। संजय रावत जी एक राज्यसभा के सदस्य हैं और सामना के संपादक भी हैं, और सच का सामना से करने से भागते हैं। ये बिल्कुल जो बयान आ रहा है, ये पूरे जांच को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा बयान, बेतुका बयान आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के बारे में कहना कि 2 शादी किए हैं, इसलिए सुशांत सिंह नाराज थे।
और इस तरह का भाषा, ये बिल्कुल ही डिरेल हो चुके हैं। ये मानसिक रूप से ही व्यक्ति जो है वह ऐसा बयान दे सकते हैं। संजय राउत ने जो कुछ भी कहा है अपने आका को खुश करने के लिए ही कहा है, लेकिन एक बात साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थियां सुलझाने में मुंबई पुलिस अब तक असफल रही है, तो नतीजों को जानने का हक देश को है और इस दिशा में उन्हें व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप के बजाय सीबीआई को मदद करनी चाहिए। संजय राउत के वक्तव्य को अगर आप बोल रहे हैं तो मैं तो यही पूछना चाहूंगा कि संजय राउत हर पंचायती में रहे हैं क्या उनके? अगर उनका कहना है कि पिता का संबंध ठीक नहीं था बेटा से और ये हो, तो पंचायती वही कराते थे क्या? तो संजय राउत एक ऐसा व्यक्ति है जो कि किसी भी विषय पे कुछ भी बोल सकते हैं। ये संजय राउत का बयान सरासर गलत है, तथ्यहीन है, क्योंकि उस परिवार से मैं लगातार अटैच रहा हूँ, नज़दीक रहा हूँ, आना जाना रहा है और दोनों पूरी परिवार एक दूसरे से जुड़े हुई थी। और बाप अपने बेटा से कभी अलग, बेटा बाप से अलग हो सकता है लेकिन बाप कभी बेटा से अलग नहीं होता है। और लगातार वो लोग टोटल 2 बहनें और उनके पिताजी लगातार आना जाना था, फ़ोन पर बातें होती थी। और मैं भी कभी उस मीटिंग में गया हूँ तो वहाँ पर काफ़ी आशीर्वाद देते थे। जिस प्रकार से शिवसेना के सांसद ने कल सुशांत सिंह के परिवार के बारे में अनाप शनाप बातें कही है, मुझे लगता पता नहीं उसमें कितना तथ्य है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। और हर परिवार की एक अपनी कोई कहानी होती है और शिवसेना वालों को भी खूब सारी कहानियां हैं। क्या ऐसे वक्त पे इन सब कहानियों पर चर्चा होगी? मुझे लगता है कि सरकार में होने के नाते हमें थोड़ी गंभीरता से, संवेदनशीलता के साथ और मानवीयता के दृष्टिकोण से इन विषयों की ओर देखना चाहिए और उसी हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। तो मैं वो जो बयान है शिवसेना की तरफ से जो आया उनके परिवार के संदर्भ में, उसकी निंदा करता हूं। Meanwhile, after this entire controversy erupted over Sanjay Raut's statement against Sushant's father, Raut told India Today that he still stands by the remarks that he made in Samna and in front of the media. तो बात ऐसी है कि अब उसकी जो मौत हुई है, सुसाइड है, तो उसे बहुत से एंगल है उसमें, इतने एंगल उसमें आते हैं और फैमिली के उसके लोगों ने कुछ अलग तरह से कोई बातें सामने रखी है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुंबई के पुलिस के ऊपर आप अगर शंका व्यक्त करते हो कि वो ठीक से जांच नहीं कर पाते, ऐसे कैसे आप बोल सकते हो? मुंबई पुलिस वर्ल्ड की बेस्ट पुलिस है, प्रोफेशनल पुलिस है। अगर आपके पास कोई जानकारी है जो मुंबई पुलिस उस बारे में जांच नहीं कर रही है, तो आप जाकर मुंबई पुलिस को बताइए, आपको पूरा अधिकार है फैमिली के मेंबर होने के नाते। सामने में जो जानकारी आपने लिखी है कि परिवार में, मैंने कहा है कि फैमिली में भी उसका अगर सब कुछ ठीक होता तो फैमिली के लोग उसके साथ आकर बैठते, पिताजी आते, उनकी बहनें आते, सब कुछ आते, लेकिन जो बातें सामने आ रही है ऑन रिकॉर्ड है, तो बोले सभी मामलों के उनके परिवार के साथ उसके रिश्ते कैसे थे? क्या उस वजह से वो डिप्रेशन में था? कुछ ठीक नहीं चल रहा था फैमिली के साथ? उसकी भी जांच आप करनी चाहिए, सबकी जांच करनी चाहिए और करते रहिए। पुलिस करेगी, पुलिस उसको न्याय देगी, मुंबई की पुलिस उसको न्याय देगी। Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.